guys, welcome to my YouTube channel Smart Learning. Today we are going to learn about the first economic definition which was given by the Adam Smith. He was the father of economics. He is an economist who represent a systematic analysis of economics. He is also known as father of economics. He given the systematic definition of economics. He publishes a book known as An Inquiry into the Nature and Causes of Wealth of a Nation, published in 1776. He publishes an book that name is An Inquiry into the Nature and Causes of Wealth of a Nation. His book is also known as Wealth of a Nation. He included in his book the definition of economics is economics as a science of wealth. He defined economics as a science of wealth. He also pointed out political economic deals with the accusing, accumulation and expenditure of wealth. Many economics like J.B. Say's Mill supported the view of Smith. Adam Smith has broadly explained the economics in his definition that economics is a science of wealth. It is the study of wealth. Those economists who supported the Adam Smith views, they started to call classical economics. In his definition, he says that acquisition, accumulation, and expenditure of wealth is the main point of his definition. एडम स्मिथ वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र जो हमारा है उसकी परिभाषा उन्होंने दी। उन्होंने अपने बुक में जो बुक उन्होंने लिखी, जिस बुक में उन्होंने अपनी डेफिनेशन को पब्लिश किया, वो बुक का नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ अ नेशन। दैट वाज जो पब्लिश किया गया 1776 में। जब वो पब्लिश किया गया तो उस बुक को नाम मिला वेल्थ ऑफ अ नेशन। उस बुक को कहा जाने लगा। एडम स्मिथ ने अपने डेफिनेशन में ये कहा कि इकोनॉमिक्स एक विज्ञान है। उन्होंने ये भी कहा कि जो हमारा राजनीतिक अर्थशास्त्र है वो संबंध रखता है कि धन अर्जित करना, उसे कंज्यूम करना मतलब यूज करना और खर्च करना। एक्विजिशन का मतलब अर्जित करना, मतलब धन कमाना, अर्निंग। एक्युमुलेशन मतलब उसे यूज कर लेना। एक्सपेंडिचर ऑफ वेल्थ उसे खर्च कर देना। ये उन्होंने अपने डेफिनेशन में कहा। और
रॉ एडम स्मिथ के डेफिनेशन को जिन जिन लोगों ने सपोर्ट किया, जिन इकोनॉमिक्स ने सपोर्ट किया, उनको क्लासिकल इकोनॉमिक्स कहा जाने लगा। अब हम बढ़ते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक की तरफ। उन्होंने अपने कैरेक्टरिस्टिक में क्या कहा, कुछ उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी उन्होंने डिफाइन किए। उनका पहला डेफिनेशन का कैरेक्टरिस्टिक है स्टडी ऑफ वेल्थ ऑफ अ नेशन। स्टडी ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, it is only concerned with the study of wealth that deals with the production, consumption, exchange and distribution of wealth. स्टडी ऑफ वेल्थ, उन्होंने पहला कैरेक्टरिस्टिक उनके डिफिनेशन का ये था स्टडी ऑफ वेल्थ ऑफ अ नेशन, मतलब जो राष्ट्र का धन है उसकी अध्ययन, उसका अध्ययन करना ही अर्थशास्त्र है। इट इज ओनली कंसर्न विद द स्टडी ऑफ वेल्थ, सिर्फ और सिर्फ धन का अध्ययन करना ही इकोनॉमिक्स है। जो प्रोडक्शन से संबंधित हो, उत्पादन से, कंजप्शन से संबंधित हो, यूजेज से, इस्तेमाल से, एक्सचेंज बदलने से हो, या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ या धन को बांटने से। नाउ his second characteristic of his definition is secondary place to the study of man. उन्होंने सेकेंड प्लेस दिया स्टडी ऑफ मैन को। In his definition, the primary place to the study of wealth and secondary place to the study of men is given. Classical economists have regarded man as a mean and wealth as an end. एडम स्मिथ के इस डेफिनेशन में ये दिखाया गया कि जो हमारा प्राइमरी प्लेस है वो धन को अध्ययन करना ही है, उसके बाद आता है कि इन स्टडी ऑफ मैन, मनुष्य जाति का अध्ययन। Classical economics have regarded man as a mean and wealth as a end. Man as a mean मतलब man एक सोर्स है and wealth उस सोर्स की पूर्ति करता है। Now the third characteristic is meaning of wealth. This definition included only material goods. Non-material goods are not included. To promote the human welfare, it must be included. एडम स्मिथ के डेफिनेशन में मैटेरियल गुड्स को सिर्फ और सिर्फ बताया गया, नॉन मैटेरियल गुड्स को इंक्लूड नहीं किया गया, उसमें नहीं बताया गया कि नॉन मैटेरियल गुड्स को भी स्टडी करना जरूरी है। Now the fourth characteristic, study of economic man. A man who is always guided by self-interest and concerned with his own material welfare. जो इंसान है वो अपने इच्छाओं का अधीन है, अपने इच्छाओं का अधीन है और वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ही भलाई के लिए सोचता है और चीज़ों को इस्तेमाल करता है। Always think of earning more and more wealth at any cost and any means. और वो
पैसे को किसी भी कैसे भी करके पैसा कमाना, वो उसकी इच्छा है. That was not good for society. It's not for human welfare. It's the way of earning money, way of earning money at any cost and any price. Investigation of the causes of wealth. This is fifth category. Investigation of the causes of wealth. Classical economics are the opinion that economic is to investigate the causes of wealth, how wealth can be increased. In order to increase the wealth, the nation production of the material goods has to be increased by the increase the sale scale of production, which is possible with the division of labor. Investigation of the causes of wealth. उनका कहना यह था कि वेल्थ को अगर बढ़ाना हो तो हमें प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा मटेरियल गुड्स का, और वो मटेरियल गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमें डिवीजन ऑफ लेबर की बेहद आवश्यकता है. डिवीजन ऑफ लेबर होना ही चाहिए, तभी हम दो चीज़ों को प्रोड्यूस कर सकते हैं. नहीं तो हम एक ही सिंगल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर पाएंगे जिससे प्रोडक्शन बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा. सिर्फ एक ही चीज प्रोड्यूस होगा और कई चीजों को हम प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे. इसीलिए डिवीजन ऑफ अ लेबर जरूरी था. नाउ सम many other definition came after the define Adam Smith definition. They called loopholes of his definition, and many loopholes have been seen in Adam Smith definition that are listed below. The first one is narrow meaning of wealth. Adam Smith has given the narrow meaning of wealth. It only included material goods. It has totally ignored non-material goods or services. But the modern economists have included not only tangible, not also in, but also tangible, intangible or service as well. एडम स्मिथ के डेफिनेशन में ना ही कि नॉन मैटेरियल गुड्स को इग्नोर किया, उन्होंने इनटेंजिबल गुड्स को भी इग्नोर किया. इसमें मैटेरियल गुड्स का मतलब है those goods which can be touched, but the non-material means the services like teaching, doctors. They have given the services to the people that wasn't included in Adam Smith definition. Now the second one, undue importance of wealth. It has given a primary place to the study of wealth and secondary place to the study of man, where man is a center point of all activities. Wealth is simply a means to satisfy the wants of a man. Undue importance to the of wealth. उन्होंने बेकार में ही वेल्थ को बहुत ज़्यादा मान्यता दे दी थी, जिसके करते जो मनुष्य था वो उसका गलत इस्तेमाल करने लगा. क्योंकि उनके डेफिनेशन में ये कहा गया था कि पैसा कैसे भी कमाओ, कि किसी भी कीमत पे वो एक पैसा है.
वो ही हमारा अर्थशास्त्र है। उनका कहने का मतलब ये था, उनका किसी भी ह्यूमन वेलफेयर से रिलेशन बिल्कुल भी नहीं था। उनके डेफिनेशन में धन का मतलब ये था कि सिर्फ ह्यूमन वांट्स को, मनुष्य की इच्छाओं को पूर्ति किया जा सके, और उसे और भी सेटिस्फाई अ बेटर लाइफ, एक अच्छी जिंदगी निर्वाह कर सके। अनरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक मैन। Economic man is one who is guided by self-interest alone, whereas such a man doesn't exist in real life. Economic Unrealistic concept of economic man, जो पैसा जो है, मतलब उनके डिफिनेशन में ये था कि मनुष्य जो है वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट, मतलब अपनी ही इच्छाओं का अधीन है। वो धन उसको गाइड करता है। उनका डिफिनेशन में ये था, ना कि मनुष्य धन को गाइड करता है, धन मनुष्य को गाइड करता है, दिखाता है उसको कि तुम ये भी ले लो, वो भी ले लो, पैसा है तो सब कुछ है। ये सारी बातों को वो दिखाता है। नैरो सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। The subject matter of economics should be the study of economic welfare of society but not the wealth. उनका कहने का ये मतलब था कि जो हमारा इकोनॉमिक्स का सब विषय वस्तु है वो सिर्फ और सिर्फ धन को कमाना और खर्च करना है, ना कि मनुष्य की भलाई के लिए कुछ ऐसा करना चाहिए। नेग्लेक्ट ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। उन्होंने मनुष्य की भलाई के लिए पूरा इग्नोर किया, ध्यान नहीं दिया। उन्होंने अपने डिफिनेशन जब उन्होंने दिया इकोनॉमिक्स का, तो उसके करते बहुत से वायलेशंस सोसाइटी में, समाज में बहुत से अलग अलग चीज़ें होने लगी। उन्होंने ये नहीं सोचा कि इससे हमारे समाज में कैसा असर पड़ेगा। उन्होंने ये कह दिया कि हमारा धन कमाना और उसे खर्च करना अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, वही हमारा धन है, वही हमारा इकोनॉमिक्स है, अर्थशास्त्र है। ना कि ये कि वो ह्यूमन वेलफेयर के लिए भी होना चाहिए, मानव की भलाई के लिए भी होना चाहिए। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। Now, this much about the Adam Smith definition. Please, if you like, then press the like button and subscribe my channel. Thank you.